Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we studied about the globes and maps and how many kinds of maps are there. Today we are going to study how to read a maps. Maps are designed and drawn for the various purpose. We must understand the following aspects to record and a use of a map. Map जो है वो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं. As I told you before in our previous lecture also that map सिर्फ स्पेसिफिक एरिया का नहीं होता. कोई फॉर एग्जांपल कोई आर्किटेक्चर जो है वो एक बिल्डिंग बना रहा है तो उसका भी एक स्पेसिफिक मैप बनाया जाएगा. नाउ हाउ टू रीड अ मैप वी विल स्टडी इन दिस वीडियो. रीडिंग डायरेक्शंस. A compass is an instrument used for reading directions. Principal points of a compass are north, south, east, and west. These points are known as cardinal points. The intermediate points direction are northeast, southeast, northwest, and southwest. Number one चीज़ क्या होती है? Directions. डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंपास यूज़ करते हैं. और कंपास में आप सबको पता है कितने डायरेक्शंस होते हैं? 4 डायरेक्शंस. दीज 4 डायरेक्शंस आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस. तो वो कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? दैट आर नॉर्थ, साउथ, east and west. You all know that very well. And what are intermediate direction? That the distance between north and east is known as northeast. The distance between south and east is known as southeast. And the northwest is northwest and the southwest is southwest. Then mapping direction. The compass show the direction of north for coming out from the home. The purpose people would have to turn to east, which is at the right angle to the north. The road then turn to the northeast and then east before reaching a crossroad. Beyond the crossroad, the person has to follow running south, southeast and east. Finally, part of the journey leads to the northeast and north. So basically ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पिक्चर के अंदर. अब इस पिक्चर के अंदर हम बताना चाह रहे हैं कि हमें घर से स्कूल जाना है. इसके लिए हम कौन सा डायरेक्शन चूज़ करेंगे? सबसे पहले हम नॉर्थ की डायरेक्शन में जाएंगे. नॉर्थ की डायरेक्शन जाते हुए इधर हमने टर्न लिया कौन सी सॉरी फॉर एग्जांपल हम लोग ईस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे. ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट की डायरेक्शन. देखें आप ईस्ट की डायरेक्शन. देन उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे. ऊपर कौन सी डायरेक्शन आ रही है? नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन. देन हम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जाएंगे. देन हमने स्ट्रेट जाना है तो हम स्ट्रेट जा रहे हैं तो वो स्ट्रेट कौन सी डायरेक्शन है? हम ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं. देन हमने डाउनवर्ड्स जाना है. डाउनवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन आएगी? डाउनवर्ड्स इज डायरेक्शन ऑफ साउथ डायरेक्शन. देन डाउनवर्ड्स के बाद थोड़ा टर्निंग डायरेक्शन में आएंगे. टर्निंग डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन. देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आए. देन स्ट्रेट अगेन ईस्ट डायरेक्शन. देन नॉर्थ डायरेक्शन, north east. Then finally we will reach to the school. Again I will tell you, north, south, east, west are what? They are the cardinal direction and the turning points are intermediate direction. Now अब मेरे साथ आप लोग बोलिए. इस गो straight is the east direction, then north east direction, then again east direction, then now downward south directions, then turning point पे आके हमारे पास south east direction, then again east direction, ऊपर की तरफ हमारे पास north direction and turning point पे north east direction, and finally we will reach to the school. Now this is the purpose and how we read a map through a compass. I hope आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी. Next, रीडिंग सिम्बल्स एंड लेगिन्स. सिम्बल्स और लेगिन्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. सिम्बल्स और लेगिन्स क्या होते हैं? कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें जो कि मैप्स में हमें बता रही होती है कि वेदर ये रिवर है, ये क्या कहते हैं, ये कौन सा एरिया है, इस जगह पे क्या चीज़ें मौजूद है. लेगिन्स और सिम्बल्स की वजह से पता चलता है. Conventional signs are symbols that are used to represent the physical and cultural feature of a map. All conventional signs are show and explain in a specific direction is called a key, legends or an index. There are standardized color for the symbol. For example, blue is used for a water. As I told you, green is used for a forest, red and black for a cultural feature, and there are the 3 types of symbols. ओके हमने मैप को रीड करना है. उसमें कुछ सिम्बल्स भी मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ कलर स्पेसिफाइड भी हैं कि अगर ग्रीन कलर है तो यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, और ब्लू कलर है तो वाटर होगा, ब्राउन है तो लैंड होगा, रेड वाइट है तो कल्चरल फीचर्स होगी. 3 टाइप्स के हमारे पास मैप्स होते हैं. लीनियर सिंबल, पॉइंट सिंबल एंड एरिया सिंबल. जैसे आप लोग देख सकते हैं 3 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं. लीनियर, पॉइंट एंड एरिया सिंबल. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स. ये अगर है तो इट्स मीन रिवर है, स्प्रिंग, फॉरेस्ट, लेक,
buildings, railways. These are some legends and conventional signs जो कि हमारे मैप में मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इस जगह पे कौन सी चीज़ मौजूद है. नेक्स्ट, reading heights. The vary of hills and mountains in a depth of a valley and a gorge as they are appear on a map are known as relief. The relief is adequate represented by using contour on map to give clear picture of an area. So relief के through हमें mountains valley की depth पता चलती है. For example, mountain कितना बड़ा है, वैली कितनी लंबाई है, किस रिवर की कितनी गहराई है, ये सब हमें किस मैप के थ्रू पता चलता है, रिलीफ मैप के थ्रू पता चलता है. ठीक है. Then what is contour? Contour are the lines that are drawn on a map to join place having some height above or below the sea level. The vertical interval between two successive contour is called a contour interval. Contour having a one drawback and cannot represent to exact height of a physical feature like a mountain peak. For this reason, trigonometrical stations are used. Trigonometrical stations is represented by the symbol following by the height above the sea level beside it. सो कॉन्टूर क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हाइट मालूम कर सके किसी माउंटेन की या फिर किसी सी की डेप्थ की. अब इसको जो है इस कॉन्टूर की वजह से एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट हमें वैल्यू नहीं मिलती, तो हम इसके लिए किसको हेल्प लेते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक मीटर को हेल्प लेते हैं. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू किसी भी माउंटेन, किसी भी जगह की हम स्पेसिफिक हाइट मालूम कर सकते हैं, स्पॉट हाइट. Another of representation exact height is mean of the spot height. It is indicated by a point on a map. Spot height के through, spotting के through हम बता सकते हैं कि इस पोजीशन पे इतनी हाइट मौजूद है, इस पोजीशन पे इतनी हाइट होगी. Now you can see here, ये क्या है? ये हमारे पास मैप है जो कि कॉन्टूर लाइंस को शो कर रहा है. नो दीज आर द कॉन्टूर लाइंस कि ये इतने पैमाने पे क्या है, ये एक माउंटेन है, ये एक वैली है, ये देखें ये एक माउंटेन है. तो ये जो लाइंस, कॉन्टूर लाइंस हैं, क्या शो करिए कि इतना फैला हुआ है. क्या इतना फैला मतलब इतना बड़ा माउंटेन है, इतनी ज़्यादा जो है वैलीज़ की में जो है वैली की लेंथ है. ठीक है. दिस इज़ द कॉन्टूर लाइन. नाउ रीडिंग स्केल. Scale is a ratio that exists between the distance of 2 points on a map and a corresponding distance between these 2 points on the Earth's surface. It is not responsible to represent the size of a land feature on a map. They are on the ground, thus it's become necessary to draw on a map scale. So, रीडिंग स्केल. स्केल को हम कैसे रीड करते हैं? स्केल होता क्या है? स्केल क्या है? किसी स्पेसिफिक एरिया की लेंथ के वो कितना बड़ा है, उस एरिया में कितने फिट जो है ज़मीन, कितना फिट जो है वो एरिया मौजूद है, या फिर टू स्पेसिफिक पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल हमें क्या है कि पाकिस्तान में कराची से लेकर हैदराबाद तक का स्केल हमें मालूम करना है. तो कराची से वन पॉइंट और हैदराबाद से अनदर पॉइंट, तो इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्केल कहेंगे. नाउ दिस इज ऑल अबाउट यू टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क.